Hello, Beta. How are you? I hope that you are fine and enjoying your classes very much. So we are doing extra question answer. 10 extra question answers we have done already. So now this is your 11th extra questions. Why did Matilda seem disturbed and anxious even after having bought a new dress for the ball? भाई मटिल्डा लोइजल फिर भी डिस्टर्ब्ड है, एंशियस है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा विचलित है, जबकि उसने नई ड्रेस खरीद ली है, फिर भी ऐसा क्यों फील कर रही है? Actually, despite getting a pretty dress, Matilda was dissatisfied as she was now wanted suitable jewelry to wear with it. क्योंकि अब उसको चाहिए बेटा क्या, ज्वेलरी चाहिए है. So her behavior was strangely disturbed, stressed and sad. तो इसीलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा strangely disturbed है, stressed है और sad है. She didn't wish to go to ball with a poverty stricken look. वो इतने ज़्यादा गरीब लुक के साथ पार्टी में नहीं जाना चाहती. सो द आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ हर फर्स्ट wish, after getting the money for the dresses, she second time got a problem of not having jewelry. Then she was very disturbed, stressed and sad. She told her husband that she would look very awkward in the presence of such a wealthy ladies by wearing such a by not wearing any jewelry. Okay, so the 12th question is, why did Matilda reject her husband's suggestion to wear natural flower at the party? क्यों रिजेक्ट कर दिया भाई? Matilda rejected her husband's suggestion to wear the natural flower at the party because she was not convinced by the suggestion. क्योंकि वो कन्विंस नहीं हुई सजेशन से. She believed that wearing flowers would make her appearance shabby and she would be humiliated in the midst of rich women. एक्चुअली वो बिलीव करती है कि वियरिंग फ्लावर्स वुड मेक हर अपेरेंस वेरी शेबी, कि उससे क्या होगा, उसके अपेरेंस, उसकी जो दिखावा है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा. एंड शी वुड फील वेरी ह्यूमिलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रिच लेडीज एट दैट टाइम वुड बी वेयरिंग वेरी कॉस्टली ज्वेलरी, वेरी प्रीशियस ज्वेलरी. Actually, she believed in appearance, and that's why she wanted to have such a unique piece of jewelry to make her more and more beautiful. Next is question number 13 is, how were the Loisels able to find a similar necklace? कैसे मिला उनको, कितनी कीमत थी, या फिर where did Loisel family had the replacement of the lost necklace? How much did it cost? कितनी उसकी cost थी, कैसे मिला? So Loisel, after coming from the ball, Mrs. Loisel found that the necklace was no more around her necklace. They tried to find everywhere for the lost necklace. Actually, they tried in the folds of the clothes, in the pockets, on the path also, but they were failed to find it. That's why they decided to replace the lost necklace. And ultimately they found the replacement in a shop of Palace Royal. तो बेटा कौन सी शॉप में उनको मिलता है? Palace Royal शॉप में उनको ऐसा डायमंड नेकलेस मिलता है. Here they found a chaplet of diamond necklace. ठीक है, यहाँ पे उनको डायमंड नेकलेस का एक चैपलेट का मतलब क्या होता है बेटा, एक पीस दिखाई देता है, कीमती पीस होता है, वैसे दिखाई देता है. Which seemed to them exactly like the one they had lost. बिल्कुल उसी जैसा जो गुम हो गया वैसा ही उनको मिला है. The cost of this new necklace was 40,000 francs, but when they bargained for it, they got it only in 36,000 francs. तो आपने याद रखना है, the actual cost price आपने जो लॉयजल्स के लिए थी वो कितनी थी, 36,000 थी, और वास्तव में अगर पूछे द रियल वैल्यू वो कितनी थी बेटा, 40,000 फ्रैंक्स थी. ठीक है, यस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what at the end of the story, why did Matilda smile with pride while talking to Madame Forrester? एंड में वो स्माइल करती है, ठीक है, जब फॉरेस्टर से बात कर रही. क्यों? क्योंकि बेटा उसको एक्चुअल में अपने ऊपर अब घमंड है. एक्चुअली मटिल्डा लोइजल स्माइल विद प्राइड while talking to Madame Forrester as she was happy at having been able to pay back the huge debt. क्योंकि अब वो खुश है वो कि उसने इतना बड़ा अपना कर्ज उतार दिया है. ठीक है, शी वॉज प्लेस्ड एट द वेरी फाउंड at her new found confidence and strength with which she had countered her struggle. वो अपने नए कॉन्फिडेंस पे, नई ताकत पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, जिससे उसको स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करने की हिम्मत आई हो उसमें. तो these are some of the qualities which Matilda Loisel got after the loss of the necklace.
15 क्वेश्चन आस्क यू व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ट्विस्ट क्या था भाई? द स्टोरी द नेकलेस एंड्स विद द ट्विस्ट अबाउट द रियल वर्थ ऑफ द लॉस्ट नेकलेस, यानी कि लॉस्ट नेकलेस की असली कीमत के साथ शुरू होता है उस कहानी में ट्विस्ट। Matilda Loisel had believed that the exquisite piece was worth thousands of francs। उसको तो लगा मटिल्डा को कि इतना सुंदर ज्वेलरी का ये पीस ये कई हज़ार कीमत का होगा, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसको रिवील किया दैट द नेकलेस वॉज एक्चुअली अ फेक वन, कि वो तो एक फेक वन नेकलेस था एंड इट वॉज वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। इसकी कीमत नहीं है 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा की। तो ये सब उसने रिवील किया। ये क्या था? दिस इज़ द ट्विस्ट इन द स्टोरी, ठीक है। व्हेन मटिल्डा लोइजल रिग्रेटेड एट हर एक्शन फॉर नॉट कन्फेसिंग द ट्रुथ, जो उसने सच नहीं कबूल किया था उसके लिए उसको अब रिग्रेट हो रहा है। 16 क्वेश्चन इज आफ्टर द लोइजल डिस्कवर्ड दैट दे हैड लॉस्ट द नेकलेस दे वर थंडरस्ट्रक। बड़े हैरान रह जाते हैं नेकलेस के गुम होने पे वो। हाउ डिड दे हैंडल दिस सिचुएशन, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, या फिर लोइजल ने क्या क्या किया उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस द लोइजल सर्च्ड फॉर इट फ्रेंटिकली इन द ड्रेस। फ्रेंटिकली मतलब जल्दी से, हरिडली, जल्दी हर जगह खोजना शुरू किया, ड्रेस में भी यानी कि जो कपड़े थे उनमें भी, फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक जो उनके मतलब शॉल वगैरह थी उसकी तह में भी देखा, पॉकेट में भी देखा। देन मिस्टर लोइजल सर्च्ड इट ओवर द ट्रैक, फिर रास्ते पे ढूंढने गए हैं वेयर दे हैड गॉन ऑन फुट, जहाँ पे वो पैदल चले थे। देन ही वेंट ऑन टू द पुलिस स्टेशन, फिर वो पुलिस स्टेशन में गया, कैब ऑफिस में भी गया और न्यूज़पेपर में भी ऐड निकाली है उन्होंने, ठीक है। सो इस तरह से जो लोइजल्स थे उन्होंने दे ट्राइड एक्चुअली दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, एंड but to their bad luck they were not able to find the necklace at once. So in this way all the short questions we have completed, okay. I hope that you understand it. Thank you very much. Have a nice day.